And during the COVID times, I was the first woman to get vaccinated in the Tri-City. Everyone is waiting कि लोग आए और वैक्सीन लगवाएं, right? But लोग क्या कह रहे हैं आज के टाइम में wait and watch. क्या देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है? मेरा दिस इज द मोस्ट फुलिश थिंग टू इवन थिंक ऑफ कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए वेट कर रहे हो या वैक्सीनेशन लगाने के लिए वेट कर रहे हो, लैक्टेटिंग मदर शुड गेट वैक्सीनेटेड. वेलकम टू रुतबा पंजाब. Thank you so much for asking me to be here. Yes, ma'am. Ma'am, so I have a lot of questions. जेडे सानू DM आए हैं उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुड वी स्टार्ट, तो पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगे हमारी ऑडियंस को. Okay, so I am Dr. Swapna Mishra. I am Director OBGY Fortis Hospital. I am the first robotic gynae surgeon of Northern India. I am the first one to bring the water birth training to the northern sector of India. I have done the maximum number of robotic surgery. And during the COVID times, I was the first woman to get vaccinated in the Tri-City. Oh, wow. Yes, ma'am. Yes. Just to remove the fear from the mind of every other person, I had to get myself vaccinated. And others waited for at least 4-5 days to see whether I was okay or not, and then they got vaccinated. So that's how it is. I have a lot of questions to ask, but before that, I just want to know कि मैम आपकी कोई फैमिली में भी डॉक्टर था और you are the one, you're the first? My brother is a doctor. My Mama Jis were doctors. So my Nana Ji was a doctor. So okay, inspired from someone or just like कि हाँ like एक dream था या कुछ something like. No. See, my brother was a surgeon, and I was and what do you call an accidental child? I was born after 12 years after he was born. So I always followed him, and he was a surgeon, and that time the surgery was a domain of guys, not women. So when he became a surgeon, it was my point that even I have to become a surgeon. And at that point, to become a surgeon, as a doctor and a surgeon, the only branch which was suitable was to become a gynecologist. So I became a doctor and a gynecologist because of my brother. Great. मैम मेरा क्वेश्चन है कि लाइक प्रेग्नेंट विमेन्स दे ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? See, for pregnant women, अपने आप को the best tip and the best thing is that जैसे हम लोग follow कर रहे हैं is that अपनी hospital visits alternate करो. मतलब come on alternate visits, come once to the hospital and next time you can have a video call with the doctor. So we have the facility कि हम एक video call करके अपने डॉक्टर से मेजॉरिटी टाइम डिस्कस कर सकते हैं. तो कुछ टाइम में डॉक्टर वीडियो कॉल के थ्रू ही आपको बता देगा कि हाँ आपको भी आने की जरूरत है और अभी आपने आना है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आने, अदरवाइज ऑल्टरनेट विजिट्स कैन बी वीडियो कॉल. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट हम चाहते हैं कि सारे होम ब्लड कलेक्शन फैसिलिटी का एडवांटेज लें, जिससे कि ब्लड अगर टेस्टिंग करनी हो तो आपके घर में आकर आपकी टेस्टिंग हो जाए, आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत ना हो. नंबर 3 इज दैट अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे फोर्टिस में वी गो बाय अपॉइंटमेंट, हम आपको डे फिक्स करते हैं जिससे कि 2 पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में भी स्पेसिंग हो और वो सारे प्रिकॉशन लिए जाए. नंबर 4 इज दैट जब भी आपने हॉस्पिटल आना है, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक N95 मास्क पहनकर ही आना है. एक सिंपल N95 मास्क आपके आसपास इवन आप सराउंडेड हो कोविड पेशेंट से, कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, तो भी वो आपको बचा के रखता है. सो एक N95 मास्क पहनकर ही हॉस्पिटल आना है. हैंड सैनिटाइजर अपने पास हमेशा रखना है. इन 2 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोविड जैसे प्रॉब्लम से कोई खतरा है. मैम दीज डेज लाइक बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ तो बहुत ज्यादा आप लाइक 97 और 98% आप सेफ रह सकते हो. मास्क से हाल से कि 100% सेफ रह सकते हो अगर आप N95 मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हो. प्रॉब्लम इज दैट मास्क किस ढंग से पहन रहे हो. नाउ आपका नोज, आपका माउथ एंड टोटल चिन हैज टू बी कवर्ड बाय द मास्क. अगर ये एरिया आपका कवर्ड है मास्क से तो आप 100% सेफ हो. तो मास्क गिव्स यू 100% प्रोटेक्शन if you are using it properly. And I've seen a lot of people, even की vegetables जो ठेले वाले हैं या कोई भी बाहर जा रहा है वो सिर्फ यहाँ पे कवर कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया, अगर देख लिया किसी को तो ये चीज कवर कर ली, अदरवाइज ऐसे रहता है. और एक चीज है that learn to speak, tell the vegetable vendor or anyone around you कि please wear your mask.
properly. Yes. Before that, वो उससे पहले कि even if they might feel bad or insulted, it's okay, you know, बीमारी कुछ ऐसी है कि it's better to tell on the face कि please wear your mask properly rather than, you know, उस टाइम आप उनसे स्ट्रगल कर रहे हो अपने नाक को ठीक कर रहे हो, तो अगर उन्होंने भी मास्क पहना और आपने भी ना मास्क पहना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. Right. And ma'am, I have a question. Robotic surgery or normal surgery में what's the difference? जैसा यू नो जमीन आसमान का फर्क है. रोबोटिक सर्जन स्पेसिफिकली हम रखते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में या फिर आप कैंसर सर्जरीज. रोबोटिक क्या करता है, आपको ऑलमोस्ट 40% मैग्निफिकेशन व्यू देता है. कोई भी चीज का, जैसे एक छोटी सी चीज हो वो आपको 40 टाइम्स गुना बड़ी दिखती है. तो आपको प्रिसीशन ऑफ सर्जरी, स्पेशली कैंसर केसेस में या कुछ केस में जब आपको डॉक्टर आपको बोलते हैं कि लैप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे केस में रोबोटिकली आप प्रॉपर डीप एरियाज में जाकर वही केस को थ्रू 4 होल्स या 5 होल्स के थ्रू अपनी सर्जरी कंप्लीट कर सकते हो. सो दैट इज एडवांटेज कि यू डू अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी आप कर सकते हो. पेशेंट का आउटकम भी बहुत सही रहता है, पेशेंट की रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है एंड पेशेंट का ब्लड लॉस भी नहीं होता और आपकी सर्जरी एक नॉर्मल सर्जरी या नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से मोर देन 100% प्रिसाइज हो जाती है. ओके, ग्रेट. मैम, वैक्सीनेशन सेंटर्स, डॉक्टर, नर्सेज, एवरीवन इज वेटिंग कि लोग आए और वैक्सीन लगवाएं, राइट? बट लोग क्या कह रहे हैं आज के टाइम में, वेट एंड वॉच. क्या देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है, मतलब उनका थ्योरी ये रह गया कि वेट करते हैं फिर लगवाने जाएंगे, अभी और वेट करते हैं, लेट्स सी. आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरा दिस इज द मोस्ट फुलिश थिंग टू इवन थिंक ऑफ कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए वेट कर रहे हो या वैक्सीनेशन लगाने के लिए वेट कर रहे हो, बिकॉज अगर कोविड का रिएक्शन जो है ना, ऐसा नहीं कि हर कोरोना वायरस पेशेंट सेफली घर जा रहा है. ठीक है, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपका बॉडी किस ढंग से रिएक्ट करेगा नहीं पता, पर ये स्टडी आ गई है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उसमें ऑलमोस्ट जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है. ऐसा नहीं कि वैक्सीन आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने से बचाएगा, नहीं, पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो जानलेवा खतरा है उससे ये वैक्सीन आपको 100% सेव कर देता है. सो दैट्स द रीजन वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन. ठीक है, कि ये आपकी जो वैक्सीनेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, आपकी जो कोरोना वायरस की जो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपकी जान जा सकती है, वैक्सीनेशन उससे आपको बचा के रखता है. हम इसी के रिलेटेड किसी ने हमें डीएम पे क्वेश्चन पुट किया है कि एक नेगेटिव अप्रोच स्टार्ट हो गया कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाओगे ना तो आप मर भी सकते हो, आप अपनी जान से हाथ भी धो सकते हो, मतलब आपको कोरोना भी हो सकता है. मतलब एक नेगेटिव अप्रोच स्टार्ट हो गया है. ये क्यों है, क्यों फैल रहा है? ये दिस इज हमारा जो है ना बिलीव्स एंड हमारे रॉन्ग टीचिंग्स है जो हमें ये बता रही है. एक तो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है दैट इज अ किल्ड वैक्सीन, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती. देखो, लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगाने गए और उसके बाद हमें कोरोना वायरस हो गया. ये नहीं है. आप वैक्सीनेशन सेंटर गए, वहां आपने मास्क नहीं पहना, आसपास लोगों में कोई ना कोई पॉजिटिव था जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है. कोई भी वैक्सीन आपको वायरस नहीं दे सकती, नंबर 1. पर अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया, उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आप वैक्सीन लेते हो, हल्का सा बुखार आ सकता है, हल्का सा माइल्ड फीवर आ सकता है, दैट्स ऑल. नंबर 2. नंबर 3, अगर आपने वैक्सीनेशन लगाया उसके 2 हफ्ते बाद गॉड फॉरबिड आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो भी जाता है, ये वैक्सीनेशन आपको बचा के रखेगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रोकेगा, आपको हायर कॉम्प्लिकेशन से रोकेगा. इसलिए ये वैक्सीनेशन तो 100% जरूरी है, आपको ये वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए. मैम, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? सी, अगर आप आईसीएमआर गाइडलाइंस दे तो आईसीएमआर इंडिया में कोरोना वायरस अभी की वैक्सीनेशन अभी आई है, ऑलमोस्ट कुछ महीने तो हुए हैं, तो इसकी स्टडी हमारे पास है नहीं ऑन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर. पर हमारी फॉक्सी की गाइडलाइंस, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला है लैक्टेटिंग मदर शुड गेट वैक्सीनेटेड. वाई? नंबर 1 कि आपकी डिलीवरी हो गई है तो आप में वो वायरस इन्फेक्शन होने का नंबर 1 खतरा जो आपको लगता है नहीं होगा. नंबर 2, अगर आपने अपने वैक्सीनेशन ली, आपका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा वायरस के अगेंस्ट. वो एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के पास जाएगा, तो अल्टीमेटली आप बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द वायरस. सो लैक्टेटिंग मदर 100%. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई खतरा है नहीं, पर इंडिया में स्टडी नहीं हुई है, सारी स्टडीज बाहर की कंट्रीज में हुई है.
सारी स्टडीज हुई है यूएस यूके में, उन्होंने कहा है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 12 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन सेफ है। पर हमारा कहना है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप प्रेग्नेंट हो पर ऐसी जगह हो जहां आसपास कोविड होने का खतरा बहुत ज्यादा है, ऐसे टाइम में आप डेफिनेटली वैक्सीनेशन कराओ। पर अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो, अगर 12 वीक्स प्रेगनेंसी में हो, या आप बिल्कुल ठीक हो और आपके आसपास जहां पर ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होने का खतरा नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हो और हाई रिस्क में आते हो, जैसे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के साथ, आपको डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या आपके कोई और रिस्क फैक्टर है, ऐसे सिचुएशन में वैक्सीनेशन आपको ज्यादा फायदा देगी। पर जो भी है वैक्सीनेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी भी इंटरनेशनल स्टडीज आई है वो कहती हैं कि 12 हफ्ते के बाद सेफ है। पर आईसीएमआर हमारा प्रेगनेंसी को बिल्कुल निगेट कर रहा है, पर डेफिनेटली लैक्टेटिंग मदर्स शुड गेट वैक्सीनेटेड, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मैम अगर लैक्टेटिंग मदर को अगर कोरोना हो जाता है तो क्या दे शुड स्टॉप फीडिंग देयर बेबीज? सी, लैक्टेटिंग मदर को अगर कोरोना हो जाता है, आप बच्चे को आप उसी ढंग से वायरस दोगे जैसे आप एक आम इंसान से लेते हो, थ्रू योर नेसो म्यूकस सेक्रीशंस। सो नंबर 1 इज दैट हम जब लैक्टेटिंग मदर कोविड पॉजिटिव हो जाती है, हम बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं, बच्चे को माँ से अलग कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मास्क हट गया, कुछ हो गया, तो आप इन्फेक्शन दे सकते हो। पर हम ब्रेस्ट मिल्क देना बच्चे को रोकते नहीं है, मतलब माँ अपना मिल्क एक्सप्रेस करके वो बच्चे को पिला सकती है, अपना एक्सप्रेस करके घर वालों को हैंड ओवर कर सकती है, जो एक स्पून एंड कटोरे के थ्रू बच्चे को पिला सकते हैं। तो यस, ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर कोविड पॉजिटिव आती है, शी शुड नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, उसको अपना दूध बच्चे को देना ही देना है। राइट मैम, एक हमें डीएम आया था कि जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, जिनको अस्थमा है, क्या उनको भी ये वैक्सीन लेना सेफ रहेगा? अस्थमा पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन ज्यादा जानलेवा है, ठीक है। सो अगर वो वैक्सीन लेते हैं, एटलीस्ट उनका बॉडी एंटीबॉडी तो बना देगा कि कम से कम अगर उसके बाद अगर उनको वायरस इन्फेक्शन होता है तो ये बॉडी फाइट तो कर लेगा उसके अगेंस्ट। सो इट इज जो अस्थमेटिक है या जो हाई रिस्क में आते हैं, अस्थमेटिक हो गया, डायबिटिक हो गया, ओल्डर एज ग्रुप हो गया, उन सब के लिए तो ये वैक्सीन प्राइमरली बना है कि उनको पहले तो दौड़ दौड़ के जाकर अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ओके ओके। एंड मैम एक और क्वेश्चन सिमिलर था कि अगर किसी मेडिकेशन से किसी को एलर्जी होती है तो क्या वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं? वैक्सीनेशन का किसी मेडिकेशन, किसी एलर्जी, ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड्स का आना नहीं आना, पीरियड्स का खत्म हो जाना, ओव्यूलेशन होना, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन ले लिया आपने और उसके इमीडिएटली बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भी आपने अबॉर्ट नहीं कराना है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। मैम डिलीवरी, अगर ਅਸੀਂ डिलीवरी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कि ਵੱਡੇ हॉस्पिटल्स में अगर हम जाएंगे तो हमारा सी सेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। बट अगर देखा जाए तो सी सेक्शन इज ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि वजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन बोथ आर नॉर्मल। ये एक नॉर्मल एक है ना, इसको हमने बहुत बढ़ा के बोला हुआ सी सेक्शन हो जाएगा, ये वो। ये क्या ये मिथ है कि हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो सी सेक्शन हो जाएगा? The first of all is that any डॉक्टर, जैसे आप हमेशा कोशिश करोगे कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो। क्यों? एज अ डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ, एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद मुझे पेशेंट की मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उस पेशेंट के पीछे भागना कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट का उठ रहा है, चल रहा है, यूरिन पाइप से में इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, बॉदर नहीं करना है। पर एक सिजेरियन के बाद डॉक्टर का हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि उसका पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या जरूरी है? आपका एडिक्वेट स्टाफ होना जरूरी है, आपके पास जूनियर डॉक्टर, आपके पास जूनियर नर्सेस, सीनियर नर्सेस का टीम होना जरूरी है। एक बड़ा हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उन सबके पास ये पूरी टीम होती है। प्लस सारे जितने बड़े हॉस्पिटल है, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल इज JCI, जॉइंट कमिश्नर इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है। इसका मतलब हर सिजेरियन सेक्शन की फाइल इज डॉक्यूमेंटेड एंड उसमें खोला जाता है कि क्या रीजन था उस केस में सर्जरी करने का। बिना किसी इंटरनेशनल या नेशनल गाइडलाइन के अलावा आप किसी पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली जहां भी कोशिश हो
एक डॉक्टर, एज अ डॉक्टर हमें हमारा ट्रायल रहेगा कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। पर जहां रीजन हो सर्जरी करने का, हम लोग उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके डेफिनेटली सर्जरी करेंगे। एनी डे नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन से बेटर होता है, पर अल्टीमेट जो आउटकम होता है वो है हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। अगर आपको लगता है नॉर्मल डिलीवरी करने से कोई नुकसान हो रहा है, आप उस चीज को डॉक्यूमेंट करके पेशेंट एंड हस्बैंड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके फिर आप आराम से सर्जरी के लिए जा सकते हो। पर ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आपको उठा के सर्जरी कर देना है तो आप सर्जरी करोगे, नंबर वन। नंबर टू, और एक हमने फैक्टर क्या रखा है, फोर्टिस हॉस्पिटल में हमने सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो सेम कर दिया है, जिससे कि पेशेंट को ये फीलिंग ना हो कि भाई डॉक्टर ने पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन कर दिया। बिकॉज एक सिजेरियन करना इज मच मोर स्ट्रेसफुल फॉर अ डॉक्टर देन टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। सो द रेट्स आर ऑल एब्सोल्युटली ओके, जिससे कि आपको ये ना लगे कि भाई डॉक्टर को भाई वांटेड टू अर्न मोर मनी और द हॉस्पिटल वांटेड टू अर्न मोर मनी, सो डॉक्टर पे प्रेशर था, उन्होंने उठा के सर्जरी कर दी, विच इज नॉट ट्रू। राइट, यस। तो मैम कोरोना वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एवरी ईयर हम लाइक नॉर्मल लेमैन जो भी है या सबको रिपीट करनी पड़ेगी? अभी तो हमारे पास वैक्सीन जो आई है उसके 2 डोज हैं एंड द इफेक्टिविटी ऑफ द वैक्सीन इज 6 मंथ्स। पर जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उसका साल में एक बार आता है, कि साल में एक बार जब सीजन आता है तब आपको वैक्सीनेट कराना होता है, वो भी बच्चों के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। तो इसका फ्यूचर में क्या गाइडलाइन आने वाला है 6 महीने 1 साल के बाद, हमें नहीं पता उसका क्या होने वाला है। फिलहाल तो अपने आप को और अपने इंडिया में जो पेंडेमिक है उसको बचाने के लिए बेटर कि हम जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतने हम आसपास के लोगों को सेफ रखेंगे। एक फैमिली का एक बंदा वैक्सीनेट होता है तो अपने आसपास के 6 लोगों को वो बचा के रखता है। स्पेशली वो लोग जो ऑफिस जाते हैं, जिनका बाहर एक्सपोजर है, जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को तो स्पेशली दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, कि वो घर में वायरस ना लेकर आए, घर वालों को वायरस ना दे दें। राइट मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे जैसे लोगों को यूजुअली विमेन्स को डायबिटीज हो जाती है या थायराइड हो जाता है सडनली, तो इज देयर एनी प्रिकॉशंस बिफोर दे हैव टू टेक, लाइक कुछ ऐसी प्रिकॉशंस की ऐसी चीज ना आए? या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, मैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है मेरे नाम से, तो उसमें मैंने काफी काफी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एंड प्री प्रेगनेंसी इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने कुछ टेस्ट कराओगे, आपके और आपके हस्बैंड की फिटनेस होने के बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे। अगर इस ढंग से प्रेगनेंसी प्लान हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं आती है। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कि आपका थायराइड चेक और आपका शुगर चेक प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हो जाए, आपको एक्सरसाइज में डाल दिया जाए, आपको प्रॉपर डाइट में डाल दिया जाए, जिससे कि सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में ना हो। अब प्लान प्रेगनेंसी में कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इट्स ओनली अनप्लान प्रेगनेंसी। और रादर आप प्रेगनेंसी होने के 2 महीने बाद हॉस्पिटल जा रहे हो कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई अब हॉस्पिटल जाना है, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। गोइंग टू अ डॉक्टर एटलीस्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के 2 महीने पहले इज द फैंटास्टिक एंड द मोस्ट राइट अप्रोच, विद हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम 2 महीने बाद प्लान कर रहे हैं, आप बताइए हम फिट हैं कि नहीं, कैन बी प्लान, विच आर द डेज टू प्लान, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या विटामिन ऐड करनी है क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज समझ के अगर आप बेस्ट स्पर्म एंड बेस्ट एग बनाइए, सो आई डोंट थिंक कि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती। It's reconnecting, 1 second. Okay, it's connected. मैम मैम थोड़ा एक यूट्यूब चैनल है तो थोड़ा जा एक ब्रीफ दे दो, अगर लोगों ने विजिट करना है जाके और देखना है तो एक ब्रीफ दे दो यूट्यूब दा। या आई हैव गॉट अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, मेरे नाम से ही है। उसमें सारी प्रेगनेंसी के काफी सारे वीडियोस हैं, इवन एंटी एजिंग के वीडियोस हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी 4 to 5 मिनट्स की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं। पर आई थिंक फॉर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्लस उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने बताई कि डिलीवरी के बाद कौन सी एक्सरसाइज करके आप फिट हो सकते हो, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्या खाना है, पंजीरी खानी है नहीं खानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। एग्जैक्टली मैम, क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पंजीरी खानी पड़ती है और सीजेरियन के बाद भी पंजीरी खानी पड़ती है, मतलब पंजीरी तो खानी पड़ती है, मतलब अगर अगर आप कॉन्सेप्ट लो तो पंजीरी आज के दिनों में इतनी जरूरी नहीं है।
पंजीरी का कॉन्सेप्ट था पुराने जमाने में, जब औरतें घर के सारे भारी काम करती थी। मतलब डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते के बाद उन्होंने घर के सारे भारी कपड़े धोने हैं, बड़े बड़े उसमें मसाला कूटना है, चूल्हे में खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है। ऐसे सिचुएशन में उनको दी जाती थी कि उनका बॉडी स्ट्रांग हो जाए और वो वापस फॉर्म में आ जाए। आजकल की लड़कियां, आई एम श्योर हम सबके घर में सर्वेंट्स होते हैं, हम सबकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है। डिलीवरी के बाद भी हमारा मैक्सिमम काम होता है बच्चे का ध्यान रखना या अपना ध्यान रखना। आई रियली डोंट थिंक कि पंजीरी की इतनी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली व्हाट हमें जिस चीज की जरूरत है इज गुड न्यूट्रिशन, जो हमारे हाई प्रोटीन एंड हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक से आता है, रादर देन पंजीरी। मैम, अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन को आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो हाउ दे कैन रीच टू यू? लाइक दे हैव टू कांटेक्ट फोर्टीज और व्हाट इज द प्रोसेस प्रोसीजर? वीडियो कंसल्टेशन कॉन्टैक्ट नंबर 7246922250 017246922250. You can make a call and book a video consultation और टेली कंसल्टेशन, और जो भी इंक्वायरी है घर बैठे आप आराम से अपना प्लान आउट या कोई भी आपकी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हो। Okay, great, ma'am. Ma'am, anything you want to say to our audience at the end, winding up with the interview? Request to each and every one of you, apart from those who are pregnant now and who are not into the high risk category, please अपने आप को कोविन ऐप में रजिस्टर कराओ and get yourself vaccinated. अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने आसपास के सबको बचाओ. It is very important. Please, 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 it's a request from the gynecologist to you all. प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. ना ये आपकी फर्टिलिटी पे नुकसान करता है, ना आपको प्रेग्नेंट होने से नुकसान करता है, ना आपके बच्चे पे नुकसान करता है, ना आपकी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट है. सो प्लीज गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. Thank you so much, ma'am, for joining Rutba with Javda. Thank you so much. ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ.